हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस फिजिक्स की बात। और इन दिस फिजिक्स की बात में हम लोग देखेंगे टॉपिक वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज द टॉपिक चैप्टर that is related from the gravitation from class 11th. So in previous video we have seen the variation of g at height. Here we will see the variation of g at depth. Already know the value of g. G is equal to gm by r square. We know that it means this is the value of g. The maximum value of g is at the surface of the earth. So in the previous video we have seen when we go up at high altitude, the acceleration due to gravity decreases. So similarly here now we'll see just कि वेरिएशन ऑफ जी एट डेप्थ कि अगर अर्थ सरफेस से हम नीचे जाते हैं तो जी के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लेट अस सी सपोज दैट दिस इज द अर्थ इज देयर, रेडियस ऑफ अर्थ दिस इज द r है रेडियस ऑफ अर्थ, m इज द मास। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज आई टोल्ड एट सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity at surface of earth formula we know that just I told g is equal to gm by r square. Here this is the g is there. Now we have to find the acceleration due to gravity at here at depth d. So whenever we go at depth d, the remaining part of earth will be this and remaining radius will be there r minus d. So now question is there कि how will find the acceleration mass of the body at depth d. तो इसके लिए क्या करते हैं कि actually the earth consists of which material. We suppose that the acceleration density of rho is there. If rho is the density of earth, rho क्या है, density of earth. तो इस केस density is equal to, you know that mass by volume. तो mass क्या हो जाए, volume of earth into density. तो इस केस में then g क्या हो जाएगा आपका, g will be g by r square और डेंसिटी विल बी देयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, बिकॉज अर्थ इज सपोज एग्जैक्ट तो स्फीयर नहीं है बट सपोज टू बी अ स्फीयर. तो 4/3 पाई आर क्यूब रो. तो क्या मिल जाएगा 4/3 g पाई r square of this is r, that is a cancel, g पाई r rho. This is the value of g. This is the equation first. Means because that was the problem to how to find the mass of earth at depth d, so that mass we have converted into in terms of क्या चीज के टर्म्स में कन्वर्ट कर दे इसको डेंसिटी के टर्म में. अब हम लोग लेते हैं if g dash जो है g dash be the acceleration due to gravity at depth d. तो वहां पर क्या हो जाएगा g dash is equal to 4/3 g pi, radius will change only, 4/3 constant, g gravitation constant, pi constant, in place of r की जगह पर हो जाएगा r minus d और density remains same. तो this is the equation second. अब फर्स्ट और सेकंड से हमें वैल्यू फाइंड करना है g डैश का. तो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो कितना हो जाए g डैश बाय g इज इक्वल टू 4/3 g पाई r माइनस d इनटू रो अपॉन 4/3 g पाई r रो. रो कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया. तो g डैश बाई जी इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस
dy r, because here left r minus dy r left, तो इसलिए g is equal to हो गया g dash will be g 1 minus dy r। यहां से तो यह कंफर्म हो गया कि g dash will be less than g, because जैसे ही हम जाते हैं नीचे तो दैट माइनस ही देगा। आपने देखा होगा कि v in the previous topic that is your g dash will g 1 minus 2h by r at height, so acceleration due to gravity also decreases at depth d। अब इसी में करते हैं if कि d और r बराबर हो जाए, मतलब r ये यहां पर एट द सेंटर, इस केस में हो गया एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ के सेंटर पर क्या हो जाएगा, तो g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस r by r कैंसिल 1 विल बी देयर, तो g। तो इस केस को जहां पर g 0 हो गया, इसका मतलब वहां पर वेट भी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी, आपको पता है mg डैश 0 विल बी देयर, तो दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस। क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। इसलिए एक तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में भी देखा था कि केस ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑफ द लिफ्ट, व्हेन द मैकेनिज्म ऑफ द लिफ्ट फेल, तो देयर द वेट बिकम्स 0, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी becomes 0 at the center of earth, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द वेटलेसनेस। इसका मतलब कि मास 0 नहीं होता है, दैट weight of the body becomes 0, because weight of the body depends upon acceleration due to क्या के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर, इसलिए वेट, दिस इज कॉल्ड द वेटलेसनेस। ओके, तो व्हाट आई टोल्ड कि इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट पर क्या होता है, जैसे सर सर्कस ऊपर जाते हैं, इसमें हमने देखा कि डेप्थ पर क्या होता है, न्यूमेरिकल इज आल्सो आस्क्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और जनरली इन स्कूल एग्जामिनेशन generally 2 variations are there, so question is asked, so we should understand this is a important topic is there, variation of g, that is the important topic is there। next is there orbital velocity, क्या थे, orbital velocity क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिट, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है डिफरेंट ऑर्बिट में, दैट सर्कुलर पाथ इज आल्सो कॉल्ड व्हाट इज दैट, ऑर्बिट। सिमिलरली ऑर्बिटल वेलोसिटी वी आर टेलिंग अबाउट द सैटेलाइट, दैट इज सैटेलाइट। तो सपोज दैट ये अर्थ है आपका, दिस इज द रेडियस r, क्या है, रेडियस r, मास m, और इससे ईच हाइट पर एक कोई बॉडी जो है रिवॉल्व, इसके चारों तरफ, तो अर्थ के चारों तरफ जो बॉडी रिवॉल्व करता है उसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट, तो दैट सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। मान लिया कि जो सैटेलाइट है इसका मास है यहाँ पर m, मास कितना है m, और v0 वेलोसिटी से अर्थ के चारों तरफ क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो हमने मान लिया, तो होता क्या है कि मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट it revolve, velocity with which a body revolve around earth in their orbit, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसी की वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या बताया
कि m जो हो गया मास ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और m है मास ऑफ सैटेलाइट, जो बॉडी सैटेलाइट बॉडी कहो सैटेलाइट कहो, जो बॉडी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड द सैटेलाइट, और h है हाइट ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, कहां से? फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ तो यहां पर क्या है, एज आई टोल्ड कि बॉडी जो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो इसलिए जब रिवॉल्व कर रहा है कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया m v नॉट का स्क्वायर r प्लस h इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m r प्लस h का होल स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल इसके बीच में रहेगा, सेंटर से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, r प्लस h का स्क्वायर। तो स्मॉल m कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, इसका मतलब v नॉट स्क्वायर जो हो गया आपका gm बाई r प्लस h, और v नॉट वी कैन राइट g कैपिटल M अपॉन r प्लस h। तो इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, orbital velocity does not depends upon mass of, only depends upon radius of planet, mass of planet और height of the orbit। एक केस लेते हैं, एक केस ले रहे हैं कि r plus h is approximately क्या r ले लेते हैं, मतलब h जो है बहुत छोटा अगर r के रेस्पेक्ट में है, एक सपोजिशन मान कर चलते हैं कि मिनिमम कम से कम भी तो कितना होना चाहिए, तो कम से कम के लिए gm बाई r विल बी देयर, और ये आपको पता है g इज इक्वल टू एक वैल्यू हम लोग जानते हैं gm बाई r स्क्वायर, तो gm क्या हो जाएगा gr स्क्वायर। तो इस केस में जो v नॉट हो जाएगा आपका v नॉट अंडर रूट gr स्क्वायर बाई r कैंसिल, तो v नॉट हो जाएगा अंडर रूट gr। मतलब another way you can tell that कि orbital velocity depends upon the acceleration due to gravity and radius of earth। इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं 9.8 into 6.4 into 10 to the power 6, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा 7.96 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली v is to write kilometer। So this is the minimum velocity of orbital velocity, so that orbital velocity depends upon either you can tell acceleration due to gravity and radius, or you can tell mass of planet or radius of planet। So that up to here, in next video we will say time period, how to find the time period of planet, how to find the height of orbit कि कितने हाइट पर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, and escape velocity। So thank you all of you, wait for next video।